Give a big shout. Hallelujah. जोर से बोलिएगा Hallelujah. Amen, amen. My topic this morning is very simple. और आज की सुबह मेरा संदेश है वो बहुत साधारण है. Very, very simple. 2 months back I had taken this topic and I'm continuing this topic again. 2 महीने पहले मैंने ये विषय लिया था और इसे अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. Say to your tongue, you tongue, you are very powerful. अपने जीभ से कहे कि जीभ आप बहुत सामर्थी हो. Amen. So the topic this morning is और आज के सुबह का विषय है your word matters. आपके शब्द मायने रखते हैं. Your word matters. आपके शब्द मायने रखते हैं. Your word matters. आपके शब्द मायने रखते हैं. God has given us the tongue, the mouth to speak. प्रभु ने हमें वो जीभ दी है, मुख दिया है बोलने के लिए. So your word has to be used in the right direction. तो आपके शब्द जो है वो सही दिशा में इस्तेमाल किए If your जाने word चाहिए. comes in the right direction, every mountain will disappear if your words are in the right direction. यदि आपके शब्द सही दिशा में आते हैं तो हर एक पहाड़ जो है वो गिर जाता है. I tell you, church, this morning, your word has to be used very, very carefully. कलीसिया आज की सुबह मैं आपसे कहता हूँ कि आपके शब्द को आपको बहुत ध्यानपूर्वक If you इस्तेमाल want करना to है. move the mighty mountain like Jericho walls, you have to use your word thinking twice before it comes out of your mouth. यदि आपको वो बड़े पहाड़ वो यरीहो की दीवारों को हिलाना है तो आपको ध्यानपूर्वक रखना है कि आपके मुख से कैसे शब्द निकलते हैं. Use them in a right manner. उन्हें सही दिशा में आप इस्तेमाल And they will करें move that wall of Jericho. और फिर वो यरीहो की वो They दीवार will को हिला move that देंगे. mountain which is standing in front of you. जो पहाड़ आपके सामने खड़ा है उसे वो हटा देंगे. But if you use them in a wrong way, यदि आप गलत दिशा में उसका इस्तेमाल करें, use them in the wrong way, यदि आप गलत दिशा में इस्तेमाल and करें, your entire life will go in smoke or go in a toss. और फिर आपका जो पूरा जीवन है वो नाश की ओर जाता है. You won't be able to retreat back again. और आप फिर दोबारा उसे स्थापित नहीं कर पाओगे. Using our word in a wrong manner will make your life miserable. अपने शब्दों को गलत दिशा में इस्तेमाल करने से आपका जीवन जो है खराब हो जाता है. It will go, your life will be miserable, church. आपका जीवन जो है कलीसिया वो खराब हो जाता है. As believers, विश्वासी होने के as नाते, Christians, मसीह होने के नाते we underestimate the power of our words. हम हमारे शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं. We underestimate. हम उन्हें हल्के में लेते हैं. Our words have the power to create and to destroy. हमारे शब्दों में वो सामर्थ है रचना करने की या फिर नाश करने की. The devil is working 24/7. शत्रु जो है वो 24 घंटे सातों पहर काम कर रहा है. He is waiting, he is doing overtime और वो जो है वो ओवर टाइम कर रहा है and waiting on God's people. और रुका है परमेश्वर के लोगों को देखते Waiting हुए. on God's people to see how they are going to speak the word. और वो रुका है देखते हुए कि परमेश्वर के लोग कैसे उनके शब्दों को निकालते हैं. 24/7 doing overtime. 24 घंटे सातों पहर वो ओवर टाइम कर रहा है. He is waiting that you turn your word into a negative direction. और वो रुका है कि आप अपने शब्द को जो है नकारात्मक दिशा में ले जाए. As you speak that word, जैसे आप शब्दों को कहते हैं, as your word doesn't line up with the word of God, जैसे आपके शब्द परमेश्वर के वचन से मेल नहीं as खाते, your word comes out of your mouth and it doesn't go and matches with the spirit of the work of God. और जैसे आपके मुख से आपका वचन निकलता है और परमेश्वर के वचन से जो I tell you, church, he will use it in such a way और मैं कहता हूँ कलीसिया आप इस रीति से इस्तेमाल करें that he will bring fire. He will fire darts of uneasiness, कि जो of discouragement, of depression, of lack, of sickness in your life. और शत्रु जो है आपके वचन को उस तीर के समान चलाएगा, निराशा के तीर के समान, कमी घटी के तीर के समान, हर एक बुरी चीजों के तीर के समान वो आप पर प्रहार करेगा. He wants you to speak words without faith. और वो चाहता है आप ऐसे वचनों को कहें जो विश्वासहीन है. As you speak that words, जैसे आप उन शब्दों को कहेंगे words without faith, बिना विश्वास के शब्द, your life will go for a toss. आपका जीवन जो है वो तितर बितर हो जाता है. So church, this morning
तो कलीसिया आज की सुबह, I am trying to tell you this morning, आज की सुबह मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, make no mistakes. आप गलतियां ना करें। Your words are not meaningless. आपके शब्द जो है अर्थहीन नहीं Your है। words are not powerless in your life. आपके शब्द आपके जीवन के लिए सामर्थ्यहीन नहीं Your है। words carry the power. आपके शब्दों में सामर्थ है Your words have creative power. और आपके शब्द में रचना करने की सामर्थ है It has creative power to do something in your life. और उसमें रचना करने की सामर्थ है कि वो आपके जीवन में कार्य को करे। The name of Jesus doesn't go in vain. यीशु का नाम जो है वो खाली नहीं The जाता। name of Jesus doesn't go in vain. यीशु का नाम खाली नहीं You जाता। missed the chance to say amen. आपने मौका गवाया आमेन कहने का। Say a big amen. एक आमेन कहे। The name of Jesus is powerful. यीशु का नाम सामर्थशाली है। As the Lord demonstrated in Genesis chapter 1 and verse 3. जैसे उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 3 वचन में परमेश्वर ने कहा, Word says, Bible says, बाइबल कहती है He said and it was done. कि प्रभु ने कहा और वो हो गया। He spoke and it was created. उन्होंने कहा और रचना हो गई। He says in Genesis 1 chapter 3, और उन्होंने It's not उत्पत्ति there. उसका पहला अध्याय 3 वचन it में says, कहा and the Lord said, let there be light. और कहा कि प्रभु ने कहा कि उजियाला हो जाए। Just tell me how many times you have said in your time of depression, discouragement, oh God, let there be light in my life. और कलीसिया मुझे बताए कि आपने कितने बार आपकी निराशा के समय में कहा कि उजियाला हो जाए। In depression, in discouragement, in lack, we always say the same words. मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा ही हूँ। और निराशा के समय में हम हमेशा कमी घटी की चीजों को, बुरी चीजों को ही बोलते हैं। Church, remember the word carries the power. कलीसिया याद रखे शब्दों में You सामर्थ्य open है। your mouth and speak this way, it will remain the same way. यदि आप अपने मुंह को खोलकर इस रीति में बोलेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। Jesus will come. यीशु आएंगे, Jesus will take you. यीशु आपको ले जाएंगे, But no change. परंतु कोई बदलाव नहीं, Same. वैसे ही नेहमी रडगाणं, हमेशा का रोना, रडत राहू. हमेशा रोते रहना, We'll keep on crying. हम रोते ही रहते हैं। Amen. But Genesis chapter 1 and verse 3 says, उत्पत्ति पहला अध्याय 3 वचन कहता है, God says, परमेश्वर ने God कहा, said, परमेश्वर ने कहा let there be light. उजियाला हो जाए। Speak. बोलो, Let that word come out from your mouth. आपके मुंह से वो वचन निकले। Your words are powerful. आपके शब्द सामर्थशाली हैं। God has given us the authority. प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। Bible says, बाइबल कहती है the authority which He gives. जो अधिकार उसने आपको दिया With है, that authority, you can open everything of your life. आप उस अधिकार से अपने जीवन के हर एक द्वार को खोल सकते Because the हैं। Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है whatever you bind on this earth will be bound in heaven. जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा Whatever जाएगा। you shall lose on this earth will be loosed on this earth. जो- Loose in the heaven. जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला So जाएगा। our words are very, very तो powerful. हमारे शब्द जो है वो बहुत सामर्थशाली है। Tongue has the power. जीभ में सामर्थ है, Word has the power. शब्द में सामर्थ है। Look into the life of Abraham. अब्राहम के जीवन की ओर आप देखेंगे After he was blessed with his son Isaac, और उसको पुत्र इसहाक होने के बाद God said to him, प्रभु ने से कहा, Abraham, अब्राहम sacrifice your son for me. अपने पुत्र को मेरे लिए बलि दे। Abraham did not say anything. अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, He just kept quiet. वो चुप रहा। When you do not know what to do in your situation, जब आप नहीं जानते कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना do है, not open your mouth. अपने मुखों को ना खोले, Just remain quiet in front of God. परमेश्वर के सामने चुप रहे। Say, God, you speak. कहे प्रभु आप बोले, Jesus, you speak to me. यीशु आप मुझसे बोले, Holy Spirit, you speak to me. पवित्र आत्मा आप मुझसे बोले। Abraham waited. अब्राहम रुका He रहा, took the child and went वो अपने पुत्र को लिए to हुए the mountain गया of Moriah. मोराया के पर्वत पर। As he was going, जैसे वो जा रहा था, his son asked him, Isaac asked him, इसहाक ने उससे पूछा, Dad, where is the lamb? पिता मेमना कहाँ है? The question was very right? तो उसका प्रश्न बहुत सही था, Where is that lamb? वो मेमना कहाँ है? Abraham did not say anything negative. अब्राहम ने कुछ भी नकारात्मक चीज नहीं But बोली, what did he say? परंतु उसने क्या किया? The Lord will provide. प्रभु जो है प्रबंध करेगा, The Lord will provide. प्रभु प्रबंध करेगा। Church, if you are going through a situation of lack, कलीसिया यदि आप कमी घटी की परिस्थिति से गुजर रहे हैं say the Lord will provide in my और situation. कहे परमेश्वर मेरी परिस्थिति में प्रबंध करेगा। If you are going through a bout of sickness in your life, यदि
आप अपने जीवन में बीमारियों से गुजर रहे if your हैं, body is not coming in line, that healing has to come. यदि आपका शरीर परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है कि चंगाई आनी है, Speak in boldness to your body. आप साहसी होकर अपने शरीर से कहे, The body will hear. शरीर सुनेगा The body will hear. और शरीर सुनेगा। Speak life to your body. अपने अपने शरीर के लिए आप जीवन कहे, Do not say, आप ऐसा ना कहे मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है. मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। No, speak it. आप कहे, Take that healing. वो चंगाई को ले। Healing belongs to his people. चंगाई उसके लोगों की Healing है, belongs to his children. चंगाई उसके बच्चों की है। Why believers are sick every now and then? मसीह हमेशा बीमार क्यों होते हैं? Yesterday night when I was praying, कल रात को जब मैं प्रार्थना कर I रहा was था, asking God, मैं परमेश्वर से पूछ God, रहा था, why your children are always sick? प्रभु आपके बच्चे हमेशा क्यों बीमार होते हैं? And I was waiting on the Lord. अब मैं प्रभु की बात जो रहा था, Only one thing it came. केवल एक ही चीज आई, I could feel in my spirit. मैं अपने आत्मा में महसूस कर रहा था, We do not speak the right words into our life. हम अपने जीवन में सही शब्दों को नहीं बोलते, And that is the reason we suffer. और यही कारण है कि हम उससे गुजरते हैं। Church, we are the children of the Most High God. कलीसिया हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। Our God has given us good health. हमारे परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी है, God has given us everything which is required on this earth for us. और जो चीजें इस पृथ्वी पर जरूरत है परमेश्वर ने But हमें as सभी चीजें दी believers, है। as Christians, we make mistakes of speaking only words of negative. मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हम केवल नकारात्मक चीजों को बोलते Second हैं। example I will give you just now. दूसरा उदाहरण मैं आपको As I am दूंगा। speaking to you, God speaks to me now this morning about the 12 spies. और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बता रहा है वो 12 जासूसों के In बारे में। Numbers chapter 13, if you see, Moses sent the 12 spies to go and see how that land is. तो गिनती के 13वें अध्याय में हम देखते हैं मूसा ने वो 12 जासूसों को भेजा देखने के लिए कि वायदे की भूमि कैसी है। They came back. वो दोबारा लौट कर आए, All the 12 came back. पूरे 12 जासूस लौट कर आए, 10 said, और 10 लोगों ने कहा, oh, we can't go there. उन्होंने कहा हम वहां नहीं जा सकते, Don't go there. वहां पर नहीं जाना है, We are like grasshopper in front of them. हम उनके सामने टिंडियों के समान They हैं, are big giants. और वो बड़े दानव हैं, We cannot stand in front of them. हम उनके विरोध में खड़े नहीं हो सकते। Word of negative. और नकारात्मक शब्द उन्होंने What कहा। happened to them? उनके साथ क्या What हुआ? happened to the 10 spies? उन 10 जासूसों के साथ में क्या हुआ? They could not enter the promised land. वो वायदे की भूमि में प्रवेश नहीं They कर could पाए, not enter the promised land. वो वायदे की भूमि में प्रवेश But नहीं कर only 2 पाए। people who spoke in the right way. केवल 2 लोगों जिन्होंने सही तरीके से कहा, Joshua and Caleb. यहोशू और कलेब, They said, उन्होंने कहा we can conquer. हम उन पर जीत We पा can सकते take हैं, it. हम ले सकते हैं, We can conquer. हम जीत पा We सकते can take हैं, it. हम ले सकते हैं। Church, this morning, कलीसिया आज की I सुबह challenge you. मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, Speak to your situations. अपने परिस्थिति से आप कहे, Say to your situation, अपने परिस्थिति से कहे, I will overcome. मैं इससे उभरूंगा, I have overcome. मैं उभरा हुआ हूँ। Tell to your body, अपने शरीर से कहे, you body, you have been healed. और शरीर तुम चंगाई पा चुके हो, You body, you have been healed. और चंगाई तुम पा चुके हो। If you have no money in your account, यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, speak to that bank account. उस बैंक अकाउंट से कहे, Go near that SBI bank. और उस बैंक के पास Wherever your account is there, जहाँ कहीं आपका अकाउंट just है, stand there and declare, उस बैंक के सामने खड़े होकर घोषणा in करें, Jesus' name, यीशु के नाम से speak the word of faith. परमेश्वर के सामने विश्वास के शब्द को कहे, You will see the word performing. आप देखेंगे वचन कार्य करेगा। Have faith in God, church. परमेश्वर में आप भरोसा रखें। The 2 spies could enter the promised land. 2 जासूस जो है वो वायदे की भूमि में प्रवेश 10 could किए, not. 10 लोग नहीं किए। Proverbs 18 and verse 21 says, नीति वचन उसका 18वां अध्याय Death and 21वां life वचन, are in the power of your tongue. मृत्यु और जीवन आपकी जीभ के सामर्थ्य में है, Death and life are in the power of your tongue. और मृत्यु और जीवन आपकी जीभ के वश में है, And those who love will eat the fruit of it. और जो उससे काम में लाने जाते हैं वो उसके फलों को खाएंगे। If your tongue speaks about negative, that means death, you will eat the fruit of death in your life continuously. यदि आपकी जीभ नकारात्मक शब्दों को बोलती है, मृत्यु के शब्दों को बोलती है, तो आप मृत्यु के फलों को खाएंगे। But if you speak life in your life, यदि आप जीवन को अपने जीवन you में will be able to experience life
in your life. फिर आप अपने जीवन में उसका अनुभव That your करेंगे, life will become as a testimony. फिर आपकी जीवन गवाही बन जाएगी। Your people, your neighbor, your friends will see and say, oh, wonderful how they are living आपके such a लोग- successful life. आपके लोग, आपके संगी मित्र, आपके पड़ोसी देखेंगे, कहेंगे कितना भरोसेमंद और यशस्वी जीवन Words जीते can be हैं। used as weapon to bring a havoc in the life of others. और शब्द जो है दूसरों के जीवन में है जो गड़बड़ी मचाने के लिए इस्तेमाल God किया has जाता given है। you the power, God has given you the words to speak. परमेश्वर ने आपको शब्द दिए हैं बोलने के लिए, Do not use it as a tool to bring someone down, और किसी को नीचा दिखाने के लिए आप उसका इस्तेमाल ना but करें, use it to bring up somebody परंतु उसका इस्तेमाल करें किसी को बढ़ाने के in लिए their life. उनके जीवन में। God has given you that word. परमेश्वर ने आपको शब्द दिए हैं, It's on your tongue. वो आपकी जीभ में है, Do not make a wrong choice. और आप गलत चुनाव ना करें। Speak the right word always. हमेशा सही शब्दों को You बोलें। want your person, you want your neighbor, you want your beloved to rise up. यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन जो है वो उभरे, Speak the right word in their life. तो उनके जीवन में सही शब्दों को आप बोले। There are 10 powerful things words can do. 10 सामर्थ्यशाली चीजें हैं जो शब्द कर सकते हैं। 5 are negative, 5 are positive, which I'm going to tell you. 5 नकारात्मक चीजें और 5 सकारात्मक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। So the first we go to negative. और पहले जो है हम नकारात्मक चीजों को The देखेंगे। first word says, पहला शब्द कहता है, words can hurt. शब्द जो है वो चोट पहुंचा सकते How many हैं। of you agree? कितने लोग इस पे सहमत हैं? Words can hurt, शब्द चोट पहुंचाते हैं। right? Proverbs 11 and verse 9. नीति वचन उसका 11वां अध्याय 9वां वचन। With his mouth the ungodly destroys his neighbor. भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी से अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, The hypocrite with his mouth destroys his neighbor. और भक्तिहीन जन जो है वो अपने पड़ोसी को अपने शब्दों से बिगाड़ता A है। saying goes this way, और ऐसा कहता है, sticks and stones may break my bones, और जो लकड़ी और जो डंडे हैं वो मेरी हड्डियों को तोड़ते हैं, but words can never hurt me. परंतु शब्द कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाते। Absolutely wrong saying. और ये बिल्कुल गलत है कहना, It is wrong. ऐसा गलत है कहना, Because word, once it comes out of our mouth and hurts somebody, क्योंकि जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं और किसी को उससे चोट पहुंचती है, nothing can heal that one person. और फिर वो जो मनुष्य है उसको कोई भी चंगा नहीं कर सकता, Nothing. कुछ भी नहीं। It will go deep down into that heart. वो उसके दिल की गहराई में जाता है, It will kill the spirit of that opposite person. तो वो उस मनुष्य की आत्मा को मार देता Then है। however you go and say, I am sorry. और फिर कितना भी आप माफी मांगे, However you go and just speak to them and say, oh, I did not want to say that things to you. और फिर चाहे आप जाकर कहें कि मैं आपसे ये शब्द नहीं कहना चाहता But था, once that word has gone, परंतु जब एक बार आप वो शब्द कह once that चुके, wrong word has gone from your mouth, जब आपने गलत शब्दों को कह it दिया goes है, deep down into the heart of the other person. उस मनुष्य के हृदय की गहराई में वो चला जाता है, It kills him. वो उसे मार देता है, It kills her. वो उसे मार It देती है, kills that family. वो परिवार को मार देती है। However you apologize, और चाहे कितनी भी माफी आप मांगे, it cannot heal. वो उन्हें चंगाई नहीं देती, It cannot heal. वो उन्हें चंगा नहीं कर सकती। Superficial something will come in your heart if you ask forgiveness. यदि आप क्षमा मांगे तो आप ऊपरी मन से मांगते हैं, But one day, परंतु एक दिन one more mistake, एक और गलती, that hurt will come up like that. और फिर वो जो चोट है वो ऐसे उभर कर आती है, Then we will remember. Then we will remember. और फिर हम याद करेंगे Priyanka, you told me this. कि तुमने मुझसे ये कहा था। She has asked for forgiveness. उसने क्षमा मांग ली है, But deep down in my heart, I am hurt. परंतु मेरे हृदय की गहराई में मुझे ठेस लगी है, And that hurt cannot be changed. और वो जो चोट है बदली नहीं जा सकती, Superficially हो जाएगा. ऊपर से हो जाता है, But one day, परंतु एक दिन once again the same situation comes. और फिर बार वही परिस्थिति आती है, That hurt will erupt. वो चोट जो है It उभरती will है, come like a volcano. और वो एक वल्कनो के समान आती It will है, destroy. वो बिगाड़ देती है, It will destroy. वो बिगाड़ देती है। So church this morning, कलीसिया आज की सुबह remember your words can hurt. याद रखिए आपके शब्द जो है वो चोट पहुंचा सकते हैं। Second, दूसरी बात, words can stir up anger. शब्द गुस्से को भड़काते हैं, Words can stir up anger. शब्द जो है वो गुस्से को भड़काता है। Proverbs 15 and verse 1, the second half says, और नीति वचन 15 और उसका पहला वचन, but a harsh word
stirs up anger. कटु वचन जो है वो क्रोध को भड़काता है। You know, NLT beautifully says, NLT version, NLT वर्जन में बहुत सुंदर तरीके से कहा है, harsh word make tempers flare. और कटु वचन जो है वो क्रोध को भड़का देता है। Yes, your harsh words. आपकी जो कटु वचन है, Church, the Lord has called us to be soft. परमेश्वर ने हमें कोमल होने के लिए बुलाया है। When we speak, speak in love. जब हम बोले तो हम प्रेम से बोले, Do not speak in anger. आप गुस्से से ना बोले। The more you are angry, the more you speak that words, जितना ज्यादा आप गुस्से हैं उतना ज्यादा आप वो शब्दों को बोलते हैं, it will flare anger again. और फिर वो गुस्से को भड़काती रहेगी। You speak to somebody in anger, in an angry way, यदि आप किसी से गुस्से के रूप में बात करें, that person also has the temperament of anger in them. और फिर वो मनुष्य में भी क्रोध होता है, Again it will rise. और फिर वो भड़कते जाता है, He will also rise. वो भी भड़क जाता है। Anger plus anger. गुस्सा और गुस्सा, It becomes anger square. और ये गुस्सा बढ़ जाता है, Anger square it will happen. और तो फिर ऐसा जो है वो गुस्सा बढ़ जाता You know है। that algebra A plus B into that square, A square plus 2AB plus B square, और हमने गणित में सीखा है ये फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर, it will happen the same way. इसी रीति से होगा। So remember, तो आप याद रखिए, याद रखिए, harsh words. कटु वचन, Control your tongue, church. अपने जीभ को संयम में रखें, Control your words. अपने शब्दों को संयम में Do not रखें। speak because God has given you the tongue to speak. आप परमेश्वर ने आपको जीभ दी है बोलने के लिए, इसलिए आप ना बोले। Third point, तीसरी बात, words can create conflict. और शब्द जो है वो संघर्ष को पैदा करता है, Words can create conflicts. और शब्द संघर्ष को पैदा You know करता है। many house, आपके घर में तू मैं, जब तू मैं होती है है, ना? It goes on, चलती रहती है, always. हमेशा, It doesn't stop. रुकती नहीं। तू हे बोलला मी हे बोलले, तू तो बोलला मी ते बोलले. तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, आपने ये बोला, मैंने ये बोला। Words can create conflicts. शब्द जो है वो संघर्ष पैदा करते हैं। It's wise to remain silent. बुद्धिमानी है चुप रहने में। बहुत सालों के बाद मैंने सीखा है। हा 37 वर्ष लागले शिकण्यासाठी। हा You have to be careful. आपको बहुत ध्यानपूर्वक रहना It है। can create, words can create conflict. शब्द जो है वो संघर्ष को पैदा Proverbs करते हैं। 16 and verse 28 says, नीति वचन 16वां अध्याय 28वां वचन, a contrary person spreads conflict टेढ़ा मनुष्य झगड़े को बगाड़ता है, and a gossip separates close friends. और कानाफूसी करने वाला जो है वो परम मित्र को भी अलग कर देता है। Gossip, कानाफूसी करना very, very dangerous. ये बहुत खतरनाक है। You go to the person, आप उस मनुष्य के पास जाते हैं, भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, ब्रदर के कान खड़े हो गए, देखो अभी भी है ना? Listen, पास्टर कुछ बोलने वाला है, nothing, only an example. ब्रदर ऐसा हो गया, that word creates conflict. और ये जो शब्द है ये संघर्ष पैदा करते हैं। Gossip चुगली separates close friend. परम मित्रों को भी अलग कर देती है। Church, this morning, be careful of what you speak and how you speak. कलीसिया आज की सुबह बहुत ध्यानपूर्वक रहे कि आप क्या बोलते हैं। Let your words be soothing. आपके शब्द जो है वो सौम्य Let your रहे। words be your words which will lift up the person. आपके शब्द ऐसे हो जो दूसरे को बढ़ाए, Whether your husband, चाहे आपका पति, whether your wife, चाहे आपकी पत्नी, your children, आपके बच्चे, your family, आपका परिवार, your friends, आपके दोस्त, even in the church. कलीसिया में भी Be careful of what you speak. आप ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे Be हैं। careful of what you speak. आप ध्यान रखिए आप क्या बोल रहे Do not हैं। gossip. आप चुगली ना करें। Gossip will divide the church. और चुगली जो है वो कलीसिया को तो भाग कर देती Gossip है। divides. जो चुगली है वो भाग कर देती है। Very dangerous. बहुत खतरनाक है, Very dangerous. ये बहुत खतरनाक है। NIV says, NIV वर्जन में कहा है, quarrel disappears when gossip stops. और जब झगड़े हैं जो बिगड़ जाते हैं जहाँ चुगली नहीं होती, Quarrel disappears जो झगड़े हैं वो वहां से गायब हो जाते when हैं gossip will stop. जब चुगली रुक जाती है। The church will grow कलीसिया बढ़ेगी when gossip will stop. जब चुगली रुकेगी। Your family grows. आपका परिवार बढ़ेगा, The relationship between husband and wife, mother-in-law, daughter-in-law, father-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, everybody grows up
when gossip stops. पति पत्नी सास ससुर और सभी के बीच में संबंध बढ़ेंगे जब चुगली रुक जाती है। Gossip is a fuel that keeps a conflict burning. चुगली वो ईंधन है जो संघर्ष को जलाते It's a रहती है। fuel. वो ईंधन है It will keep that conflict burning. और वो संघर्ष को जलाते रहती है। Stop gossiping. चुगली करने से आप रुके रहे, Stop gossiping. चुगली ना करें, Just remain quiet. आप चुप रहे। Even if you have heard something, यदि आपने कुछ सुना भी हो, be quiet. चुप रहे। Let not your right hand knows what your left hand does, and left hand know what your right hand does. और आपके बाएं हाथ को पता न चले जी आपके दाएं हाथ क्या कर रहा है, आपके दाएं हाथ को ना पता चले आपका बाएं हाथ क्या कर रहा है। Church, कलीसिया, gossip can damage relationship. चुगली जो है वो संबंधों को बिगाड़ It देती है, can damage the relationship. वो संबंधों को बिगाड़ सकती So है। be careful. तो आप ध्यान पूर्वक रहे। When you are using some certain words, it can create conflict in जब our आप life. जब आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जीवन में संघर्ष को ला सकते हैं। Fourth point. चौथा मुद्दा, Words can crush the spirit. शब्द जो है वो आत्मा को कुचल देता है। Your words can crush the spirit. आपके शब्द जो है वो आत्मा को कुचल सकते हैं। You know, many times बहुत बार our children comes, हमारे बच्चे आते हैं you know, dancing and in joyful mood to tell us something. और झूमते नाचते हुए आते हैं हमें कुछ कहने के लिए। I'm giving an example. मैं एक उदाहरण दे रहा And हूँ। when they come dancing, singing and telling you something, और जब वो झूमते नाचते आपके पास आते हैं आपसे बात करने के mostly लिए, children don't come to papa, they go to mama. और खास तौर से बच्चे जो है माँ के पास जाते हैं, बाप के पास नहीं जाते। नहीं बाप के पास जाते हैं, ऐसे नहीं है, okay, but 90% they go to mama. और 90% जो है वो अपनी माँ के पास जाते And हैं। if mama is very tired in the kitchen, और यदि माँ जो है वो किचन में काम करके थक गई अरे है, बोलना लवकर, काय बोला इसे? जल्दी जल्दी बोलो तुम्हें क्या कहना है। You are crushing the spirit of your son. आप अपने पुत्र की जो आत्मा को वो जो है कुचल देते You हैं। are crushing the spirit of your daughter. आप अपने पुत्र की आत्मा को कुचल देते हैं। Give your ear what she wants to tell you. और आप सुने कि वो आपसे क्या कहना Give चाहते your हैं। ears to see your son. He wants to tell you something. आप अपने बेटे के पास अपने कान को लगाए, वो आपसे Do कुछ not कहना crush चाहता his है। spirit. उसकी आत्मा को ना कुचले, Do not crush his spirit. उसकी आत्मा को ना कुचले। Proverbs 15 verse 4, a devious tongue breaks the spirit. नीति वचन 15:4 में कहा गया है, उल्टे फिर की बातें जो है वो आत्मा को दुखित करती है, It breaks the spirit. वो आत्मा को दुखित करती है। Let your mouth, let your ears be open to hear what your son or daughter is trying to tell you. आपके कान हमेशा खुले रहे कि आपके बेटे और बेटी आपसे क्या कहना चाहते हैं। Let not your tongue crush the spirit. आपकी जीभ जो है वो आत्मा को ना कुचले। If you crush that spirit that time, यदि आप उस समय उस आत्मा को कुचल देंगे it will be very difficult for that person to rise up again. तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उस मनुष्य को दोबारा उभरने He के or लिए। she will lose the faith she has in you. और जो विश्वास आप में उनका है वो उसे गवा देते हैं। Bible says, बाइबल कहती है quick to listen, slow to speak. और आप सुनने में तेजी करें, बोलने में आप पीछे रहे। Quick to listen, slow to speak. और आप जल्दी से सुने पर धीमे से आप Take बोलें। control on your words. अपने जीभ पर आप नियंत्रण रखें। You have to have control on your words. आपके शब्दों पर आप नियंत्रण If you रखें। don't take control, यदि आप नियंत्रण ना ले you are crushing that person's spirit. तो फिर आप उस मनुष्य की आत्मा को कुचल You know, I देते हैं। like to speak on practical things. और मुझे वास्तविक चीजों पे बोलना अच्छा लगता I have है। gone through all these situations in my life. मैं अपने जीवन में इन सभी परिस्थिति से So गुजरा when I हूँ। stand with hardcore experience. जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं पूरे अनुभव को लिए हुए खड़ा हूँ। People have crushed me. लोगों ने मुझे कुचला है। So Proverbs 15 and verse 4 says, नीति वचन 15:4 में कहा है, a devious tongue breaks the spirit. और उल्टी फेर की जो जीभ है वो आत्मा को दुखित करती है। Fifth point, पांचवा मुद्दा, for the negative side, नकारात्मक चीजों के लिए words can condemn. शब्द जो है वो निंदा करती है। Words can condemn. शब्द निंदा कर सकती है। If you see in Matthew chapter 12,
36, 37 and 34b. यदि मत्ते उसके 12वें अध्याय 34, 36 और 37 वचन में हम देखते हैं, Jesus says, यीशु ने कहा, out of the abundance of heart, the mouth speaks. जो आपके मन में भरा है वही आपके मुंह से निकलता है। Out of the abundance of heart, the mouth speaks. हृदय के भरपूरी से मुंह बोलता है। What your heart is filled with? आपका हृदय किस चीजों से भरा है? Is your heart filled with dirtiness of this world? क्या आपका हृदय संसार की गंदगी से भरा है? Or is your heart filled with the word of God? या फिर आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा है? So whatever you are filled here will come out of your mouth. जो कुछ आपने अपने हृदय में भरा है वही आपके मुंह से निकलेगा। This tells us the problem is not our tongue, समस्या हमारी जीभ नहीं है, but our heart. परंतु हमारा हृदय। Church, your heart has to be filled with the word of God. कलीसिया, आपके हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना The है। word of God has to be filled in your heart. परमेश्वर के वचन आपके हृदय में होने चाहिए। So when you open your mouth, the word of God should flow from your mouth. तो जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा। Behind all of our sin, और जो कुछ हमने कहा है, sin of speech और बोलने की जो पाप है, is a sinful heart. वो एक पापी हृदय है। If your heart is filled with negative words, with dirt, यदि आपका हृदय नकारात्मक शब्दों से, गंदी चीजों से भरा है, your mouth will speak the same. तो फिर आपका मुंह भी वही बातों को बोलेगा। Better be aware. आप बहुत ध्यान Be रखें, aware ध्यान रखें। what you're feeling inside. आप अंदर क्या भर रहे हैं? What you're feeling inside. आप अंदर क्या भर रहे हैं? If you're feeling dirt, dirt will come out. यदि आप गंदगी भरेंगे तो गंदगी निकलेगी। If you feel good things in your heart, यदि आप अपने हृदय में अच्छी चीजों को भरेंगे good things will come out of your heart. तो आपके हृदय से अच्छी चीजें ही निकलेंगी। The tongue simply reveals what is stored inside. तो जीभ दर्शाती है कि आपके अंदर क्या भरा है। The control room of our life. हमारे जीवन का जो नियंत्रण है, The control room of our life हमारे जीवन का जो नियंत्रण है, is our heart. वो हमारा हृदय है। Is our heart. वो हमारा हृदय है। Remember, church, this morning, कलीसिया, आज की सुबह आप याद रखें, what goes in जो अंदर जाता है comes out. वही बाहर आता है। What goes in जो अंदर जाता है comes out. वही बाहर आता है। Dirt has gone, गंदगी गई, dirt will come. गंदगी आएगी। Good thing goes, अच्छी चीजें जाती हैं, good thing will come. अच्छी चीजें आती हैं। Church, why I am telling you this morning? कलीसिया, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? Why I am telling you all these things मैं ये this सब morning? चीजें आपसे क्यों कह रहा हूँ? Be careful. आप ध्यान रखें, The lion is waiting outside. जो सिंह है वो बाहर रुका है A roaring lion और गर्जन करने वाला सिंह to devour you, आपको खा जाने के to लिए, take control of your life. आपके जीवन का नियंत्रण करने के लिए। Do not give your control into his hands. और अपने जीवन का नियंत्रण आप उसे ना As दें। I said, 24/7, someone is working. जैसे मैंने कहा, 24 घंटे 7 दोपहर कोई तो काम कर रहा है। 365 days, he's Three- working 24/7. 365 दिन 24 घंटे 7 दोपहर वो काम कर Do रहा not है। allow him. आप उसे अनुमति ना दे। Give your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दे। Fill your heart with the word of God. अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरे And the word of God will flow from your mouth. और फिर परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा। The positive effects of the word. और सकारात्मक There were negative effects. सकारात्मक प्रभाव शब्दों के, There are positive effects also. और सकारात्मक शब्द भी है, नकारात्मक शब्द Antibiotic है भाई. एंटीबायोटिक है। We have that thing. God has given us. परमेश्वर ने हमें ये भी दिया है। The positive effects of word. शब्दों के सकारात्मक प्रभाव। Words can spread knowledge. शब्द जो है वो ज्ञान को फैलाते हैं। Words can spread knowledge. शब्द ज्ञान को फैलाते हैं। Proverbs 15 and verse 7 says, नीति वचन 15 और 7वां वचन, the lips of the wise broadcast knowledge. और जो बुद्धिमान के शब्द हैं वो ज्ञान की बातों को Not कहते हैं। 15:1, 15:7. 15:7, 15:1 I will come, put it later on. 15:7, the lips of the wise broadcast knowledge. बुद्धिमान के जो मुंह है वो समझदार के जो मुंह है वो बुद्धिमानी के शब्दों को कहते हैं। Bible says, बाइबल कहती है the lips of the wise. बुद्धिमान के जो मुंह है, Be wise, church. आप बुद्धिमान बने, Bring knowledge into the life of others. दूसरों के जीवन में आप ज्ञान को लेकर And आए। when your lips open up, जब आप अपना मुंह खोलते हैं something someone should learn from you. तो कुछ तो चीज लोगों को आपसे सीखनी Our चाहिए। children are watching us. हमारे बच्चे हमें देखते हैं,
हैं, though my son is so big, my daughter is so big, चाहे मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत बड़े now हैं, my grandson is so small, अब मेरा पोता छोटा है, but they all watch us. और वो सब हमें देखते हैं। What you speak, आप क्या कहते what हैं, comes out of your mouth. आपके मुंह से क्या निकलता Very, है, very important, church. बहुत जरूरी है कलीसिया। The lips of the wise broadcast knowledge. बुद्धिमान के जो शब्द है वो ज्ञान को लाते A हैं। gentle answer, Proverbs 15 verse 1, उसका B part. A gentle answer turns away anger. और कोमल उत्तर जो है वो जलजलाहट को मिटा देता In है। anger, do not reply to anybody. और गुस्से में आप किसी को उत्तर ना दे, Just remain quiet. आप केवल चुप रहे, Remain quiet चुप रहे, till that heat passes away. और जब तक वो उसका क्रोध ठंडा ना हो जाए, Till that heat passes away. जब तक उनका क्रोध ठंडा ना And हो then जाए, speak. और फिर आप बोले, That word which you speak और जो शब्द आप कहेंगे will turn away the anger of the other person. वो उस दूसरे मनुष्य के क्रोध को ठंडा कर देगी। Second part. दूसरा भाग, Words can build others up. शब्द जो है वो दूसरे को बढ़ा सकते हैं, Words can build others up. शब्द जो है वो दूसरों को बढ़ा सकते हैं। Ephesians 4 and verse 29. इफिसियों का 4 अध्याय 29वां वचन। Church, listen, give your ears to hear, to listen when I'm telling you something now. जब मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आप अपना कान मेरी ओर लगाएं। Ephesians 4 and verse 29 says, let no corrupt word proceed out of your ears. इफिसियों 4:29 में कहा है, कोई गंदी बात आपके। Only one is attentive. Come on, church, say hallelujah. हालेलुया। अरे बोलो ना भाई. You all are sleeping? No, only one was awake. She corrected me. Thank you, Sister Gladys. Let no corrupt word proceed out of your mouth. कोई गंदी बात आपके मुंह से ना निकले, But what is good for necessary edification, परंतु जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए that है, it imparts grace to the hearer. कि ताकि वो सुनने वाले को अनुग्रह दे। Yes, no corrupt word, कोई गंदी बात नहीं, but words of edification. परंतु उन्नति के शब्द, However that person may be, चाहे वो मनुष्य कैसा भी हो, even if he or she has fallen, चाहे वो गिरे हुए भी क्यों ना हो, just go to them and speak तो आप जाए उनसे बोले words of encouragement. वो प्रोत्साहन के शब्द, They may be waiting for someone to come and speak to them. और वो रुके होंगे, कोई तो उनके पास आए और उनसे बात करे, Tell them, उनसे कहे, speak to them. उनसे आप बात करें। Let your word edify. आपके शब्द जो है उनको उन्नति दे, Let your words bring them up. उनके आपके शब्द जो है वो उनको बढ़ाए। Do not put them down because they are already down. उन्हें आप नीचे ना दिखाए, वो पहले से ही नीचे हैं। The world standard is that way. संसार का जो तौर है वो If ऐसा you are है, down, यदि आप नीचे हैं they will keep both the leg on you, तो on your head. वो आपके सर पर दोनों पैरों से खड़े हो जाते They will हैं, never allow you to come up. वो कभी आपको ऊपर उठने नहीं But देंगे। Bible never teaches us that. परंतु बाइबल कभी हमें ऐसा नहीं सिखाती। Bible teaches us बाइबल हमें सिखाती to है lift up each other. एक दूसरे को हम ऊंचा उठाए, We have to lift up. हमें उठाना है। Amen? Amen. So words can build others up. और शब्द जो है वो दूसरों को बढ़ा सकते हैं, Words can be, third point, word can bestow grace. और शब्द जो है वो अनुग्रह प्रदान कर सकते Same हैं। Ephesians 4 verse 29 and the last line says और इफिसियों 4:29 आयत में कहा that है, it will give grace to those who hear. जो सुनने वाला है उसे वो अनुग्रह देता है, It will give grace to those who hear. वो सुनने वाले को अनुग्रह देता है। Words can be vehicle of God's grace in our life. और शब्द जो है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दर्शाते Yes, हैं। our words are vehicle of God's grace in our life. हमारे शब्द जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Next point. दूसरा मुद्दा, Words can encourage and comfort. और शब्द जो है वो हिम्मत दे सकते हैं, वो आराम दे सकते 1 हैं। Thessalonians chapter 4 and verse 18 says, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 18 वचन, encourage one another with the words. वचन से आप एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, Encourage others. एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, Encourage others with the word of God. दूसरों को परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहन दे, Speak to them the word. उनसे आप शब्दों को कहे Build them up. और उन्हें आप बढ़ाए, Bring them up from that situation. उस परिस्थिति से आप उन्हें उभारे। You know, I've seen so many believers speaking. और मैंने बहुत से विश्वासियों को If कहते someone सुना है, comes and tells them, और कहते हैं आकर, brother, I'm going through this situation. भाई मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें। Instead of praying for them, उनके लिए प्रार्थना करने के the बजाय first word which comes out, जो पहला शब्द निकलता है, मैं भी गया इसमें से.
हम भी इससे गुजरे हैं, मैं भी गया। हम भी गुजरे हैं। अरे he has come for counseling. वो आया है आपकी सलाह He लेने, has come to ask something. वो आया है आपसे कुछ पूछने। Speak to him in such a way that he will be lifted up. इस रीति से आप उसे बात करें कि वो बढ़े। That moment is not interested whether you have gone or you have not gone. और वो जो मनुष्य इसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि आप इससे गुजरे हैं या नहीं, He is interested to hear something good which will lift him up. उसकी दिलचस्पी है उन बातों को सुनने में जो उसे बढ़ाए। So 1 Thessalonians chapter 4 and verse 18. पहला थिस्सलुनीके 4:18 Encourage one another with these words. इन शब्दों से एक दूसरे को आप शांति दे। Next point. दूसरा मुद्दा, Words can heal. शब्द जो है वो ठीक कर सकते हैं। Proverbs 12 and verse 18. नीति वचन 12-18 अध्याय The वचन। tongue of the wise brings healing. बुद्धिमान के जो शब्द है वो चंगाई है। The tongue of the wise brings healing. बुद्धिमान के जो शब्द है वो चंगाई को लाते If you हैं। read the book of Ezekiel chapter 37, यदि एजिकियल के 37 अध्याय को आप the पढ़ें, dry bones, जो सूखी हड्डियां हैं, the dry bones were lying there, here and there, here and there, everywhere. वो सूखी हड्डियां जो है यहाँ वहाँ सब जगह पड़ी हुई थी। Ezekiel spoke the word. एजिकियल ने शब्द को कहा, The word performed. शब्द ने कार्य किया। Church, however may be your situation, कलीसिया चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी speak the हो, word of God in your situation. आपके परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों को आप The कहें, word will perform. और जो वचन है वो कार्य It will करेंगे। never go dry. वो कभी खाली नहीं It जाएंगे, will always perform. वो हमेशा कार्य को You will करेंगे। be able to see आप देखेंगे that the word will perform. कि शब्द कार्य करेंगे। In the end, I want to challenge you, church, this morning. और अंतिम में आपको मैं चुनौती देता हूँ, God will hold us accountable for our words. परमेश्वर हमारे शब्दों के लिए हमसे लेखा जोखा लेगा। Every word coming out of our mouth, हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, God is going to catch us. परमेश्वर हमसे लेखा जोखा लेगा We will be accountable. और हमको उसका लेखा जोखा James देना 3 है। and verse 1 says, याकूब 3 और पहला वचन। James wants teachers to be careful of what they say. और याकूब जो है वो उपदेशों को सतर्क करता है कि वो क्या कहते हैं। He is warning teachers. वो उपदेशों को सतर्क करता He है is warning the pastors. और वो पासवानों को He is सावधान warning करता the है। elders. वो अगुओं को जो है सावधान करता है, leaders. अगुओं को सावधान He करता is है। not even, he is not only अगुओं को, but he is challenging everyone. वो हर एक को जो है वो चुनौती देता है। Every person sitting in this room has a calling. और इस कमरे में बैठे हुए हर एक जन के पास एक बुलाहट है। James is telling to everyone, याकूब सबसे कहता है, for every word you will be accountable. हर एक शब्द के लिए आपको उसका लेखा जोखा देना You है will have to give account of your word in the time of judgment. और न्याय के दिन पर आपको आपके शब्दों का लेखा जोखा देना है। We have to give. आपको बताना है। You cannot escape that thing. आप उस चीज से बच नहीं सकते। Matthew 12 and verse 36 said, मत्ती 12वां अध्याय 36वां वचन, Jesus said यीशु ने कहा that we would be held accountable for every idle word. और हर एक Oh. निकम्म बातों के लिए तुम्हारा न्याय के दिन लेखा लिया When I was जाएगा। preparing, जब मैं तैयारी कर रहा था, when I prepared this word, जब मैंने इन शब्दों की तैयारी की, I said, oh God, मैंने कहा प्रभु you are going to catch us for every word which comes out of our mouth. और हर एक शब्द का आप लेखा लेंगे जो हमारे मुंह से निकलती है। Every idle word, church. हर एक निकम्मा शब्द, Every idle word. हर एक निकम्मा शब्द We will be accountable to Him. हम परमेश्वर को उसका लेखा देंगे। We will be accountable to Him. हम परमेश्वर को उसका लेखा देंगे। This includes इसका मतलब इसमें ये भी मिलता है, the word we speak without thinking and gossiping. और जो शब्द हम बिना सोचे हुए चुगली में बोलते हैं। Remember, church, याद रखें कलीसिया, because God has given you mouth and the two beautiful lips and a wonderful tongue inside. और परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर मुंह दिया है, 2 होंठ दिए हैं और एक सुंदर जीभ दी है। Do not fall. आप गिरे नहीं, For in the last day, क्योंकि आप अंत के दिनों में when you will stand in front of the Lord for judgment, जब आप प्रभु के सामने न्याय के लिए खड़े He रहेंगे, will open your book. वो आपकी किताब को And खोलेगा every idle word और हर एक निकम्मा शब्द
we will be held accountable. उसके लिए हमारा लेखा लिया Every जाएगा। idle word, हर एक निकम्मे शब्द के लिए we will be held accountable. हमारा लेखा लिया जाएगा। Proverbs 10 and verse 19 says, नीति वचन 10वां अध्याय 19वां वचन, He who restrains his lips is wise. जो कोई अपने मुंह को बंद करता है वो बुद्धिमान होता है। He who restrains his lips is wise. जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमान होता है। Just do not use your tongue for anything. आपकी जीभ का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए ना करें। Be wise to open your lips. आप बुद्धिमान बने अपने मुंह को खोलने से पहले। Bible says, बाइबल कहती है because in the multitude of words, sin is not lacking. क्योंकि बहुत सी बातों में जो है अपराध होता है, Sin is not lacking in the multiple of words. और बहुत सी बातों में जो है अपराध होता है। So before opening your lips, अपने मुंह को खोलने से पहले, before your tongue can throw out a word, जब आपकी जीभ में से शब्द निकलता है, just think twice, church. आप 2 बार सोचे, Think twice. 2 बार सोचे। Do not stand in the time of judgment and get judged because of the idle words you have spoken. न्याय के दिन में आप खड़े रहकर अपने निकम्मे शब्द के लिए आप लेखा ना दें। It's a very simple maths. और बहुत ही सरल गणित है। The more words we speak, जितने ज्यादा शब्द हम कहेंगे, the greater the likelihood that some of them will be regrettable. तो उतना ही ज्यादा आप अपने शब्दों के लिए पश्चाताप भी करेंगे। Very simple maths. और बहुत ही सरल गणित है। If you open your lips here and there, यहाँ वहाँ अपने मुंह को आप खोलेंगे, the more you will be held responsible. तो उतना ज्यादा आपसे लेखा लिया जाएगा। The more, उतना ज्यादा control your lips, अपने जीभ को नियंत्रण में control रखें। your tongue, अपने जीभ को नियंत्रण में control your रखें। words. अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें। If you do not want to be judged by God for your idle words, और आप अपने निकम्मे शब्दों के लिए यदि परमेश्वर को लेखा नहीं be देना very, चाहते, very careful of what you speak. तो आप बहुत ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं। He listens to every word of our mouth. हमारे मुंह के हर एक शब्द को वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनता He है, listens. वो सुनता है। In the last days, let not regret come and say, oh, what I have done. ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में हम पश्चाताप करें और कहें कि हमने क्या किया। Just this morning, I want to challenge you. कलीसिया, आज की सुबह मैं आपको चुनौती देता हूँ, Before speaking, think twice. बोलने से पहले 2 बार सोचे। Before speaking, think twice. बोलने से पहले 2 बार सोचे। Even if someone has hurt you, चाहे किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो, even if someone has said something about you, चाहे किसी ने आपके बारे में कुछ कहा हो, be wise. आप बुद्धिमान बने, Be wise. बुद्धिमान बने। Because he has sown problems, do not speak problems into that person's life. क्योंकि उसने समस्या बोई तो आप भी उसके जीवन में समस्याओं को ना कहे। Think twice before you speak. बोलने से पहले 2 बार सोचे। For he listens to every word coming out of our mouth. और क्योंकि वो हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को सुनता है। Whatever happens, church, जो कुछ होता है, be very, very careful. आप बहुत ध्यान पूर्वक रहे। Hallelujah. हालेलुया। God bless all.